Okay, so this is the probability mass function of binomial distributions, है ना. आप लोग इसको जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा. P इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x, है ना. x इज ए रैंडम वेरिएबल, है ना. x इज ए रैंडम वेरिएबल and small is the value of that variable, है ना, इज इक्वल टू ncx, है ना, into p की पावर x q की पावर n माइनस x. n is the number of trials, p is the probability of success, q is the probability of failure, यानी कि 1 माइनस p, है ना. यानी कि प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी p probability of success plus probability of failure is equal to 1, है ना. this is the, है ना, this is the total probability, है ना. p plus q is equal to 1, है ना. so this is the most important, this is the definitions. A random variable x is said to have a binomial distributions with parameter n and p if it assume only non-negative value and its probability mass function is defined as probability of x is equal to ncx p की पावर x q की पावर n माइनस x. तो ये इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को आप कई बार लिख करके याद कर लीजिए इसको, ठीक है. वेयर n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी q 1 माइनस p. ओके, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस इज first in all distributions there are in the characteristics what will their means, variances, है ना, what is the nature of the distributions, mode, mode etc. comes under the characteristics. So the mean of binomial distribution is np. np is the mean, है ना. n and p is the parameter of, है ना, parameter of binomial distribution. There are two parameters n and p, है ना, and if you multiply n and p we get mean of binomial distributions. And variance of binomial distribution is the npq, है ना. This is the variance of binomial distribution. And as you know, what will be the standard deviation? Square root of variances. So square root of npq. And here mean is always greater than variances, है ना. here mean is always greater than variance, यानी कि mean हमेशा बड़ा होगा variance से, ठीक है. in case of binomial distributions and it is used for discrete variable, है ना. it is used for discrete variables, है ना. and it is based on binomial series, है ना. ये है ना, binomial distribution is based on binomial सीरीज, है ना. बाइनोमियल आप लोगों ने सुना होगा नाम, है ना, जो 12th वगैरह में होता है बाइनोमियल सीरीज. तो उसी का एक पार्ट है ये, है ना. दिस जो ये है उसी का एक पार्ट है ये. एंड फर्स्ट फॉर मोमेंट्स नॉर्मली आप लोग, है ना, ये मोमेंट जैसे फर्स्ट को दिस इज द फर्स्ट है, जो आपका मीन है इसको फर्स्ट सेंटर मोमेंट्स बोलते हैं, फर्स्ट मोमेंट बोलते हैं मीन को, यानी कि एनपी, है ना, मीन को बोलते हैं. और म्यू2 दिस इज द सेकंड सेंटर मोमेंट, तो ये होता है वेरिएंसेस एनपीक्यू, इसको बोलते हैं वेरिएंसेस. और थर्ड मोमेंट एनपीक्यू इंटू क्यू माइनस पी, एंड फोर्थ मोमेंट एनपीक्यू विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 3 n माइनस 2 इंटू पी क्यू, है ना. सो दिस इज द फोर्थ मोमेंट, दिस इज द थर्ड मोमेंट, दिस इज द सेकंड मोमेंट. सेकंड मोमेंट is nothing but this is the variance, and first moment is nothing but this will be the mean of the binomial distribution. Okay, and there are also certain under conditions, certain conditions the binomial distribution tends to normal distributions, है ना. binomial distribution tends to normal distribution for large n, and that is n tends to infinity, है ना. if number of trials, है ना, if number of trials n tends to infinity, then binomial distribution converts या changes to normal distributions. This is the most important properties. Okay, next property is binomial distributions tends to Poisson distributions, है ना. binomial distribution tends to Poisson distributions if p is very small,
है, यानी कि P जब बहुत छोटा हो जाए तब आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो जाता है। एंड दूसरा क्या है, n इज वेरी लार्ज, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है बहुत ज्यादा हो जाए, इन्फिनिटी को टेस्ट करने लगे, है ना। एंड P जो है 0 को टेस्ट करने लगे, है ना, ये दिया, दैट इज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, P टेंड्स टू 0। ओके, सो इन दिस केस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे जैसे फॉलो मतलब हो जाती है वो। नेक्स्ट वन इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये स्क्यूनेस क्या है ना। स्क्यूनेस मींस जो आपने एक सुना कोई जो जो सिमेट्री होती है ना, सिमेट्रिक, है ना। जैसे आपका जो ये आप देखो, यदि हम इस तरह से हम करते हैं तो ये दिस इज द सिमेट्री, है ना, दिस इज द सिमेट्री, है ना, मतलब जितना इधर है उतना ही जो है इधर है। तो इसका आकार का क्या है, इसका जो आकार है बेल शेप के आकार का है ना, ये जो ये ना इसका जो कर्व का आकार का बेल शेप का आकार का है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्री, है ना। अब यही जो है यदि किसी तरफ झुका हुआ हो, इस तरह से हो जाए, है ना, तो क्या होगा, ये एसिमेट्री हो जाएगा, है ना, और ये भी जो है ये एसिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्क्यूड, स्क्यूड मीन्स एसिमेट्री, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं, इसको इसको जो है स्क्यूनेस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसका जो है इसको जो कहते हैं बीटा वन से, बीटा वन और गामा वन से इसको इसके जो केसेस को हम फॉलो करते हैं। तो एक थोड़ा सा एक और देख लीजिए। अब है ना, स्क्यूनेस मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका है ना ये जो है सिमेट्री है, दिस इज द सिमेट्रिक कर्व, है ना, ये जो है सिमेट्रिक कर्व है ना, जितना इधर है उतने ही ये इधर है, ये सिमेट्रिक हो गया, है ना। तो इसी पर जो है मीन मोड मीडियन जो तीनों तीनों इसी लाइन पर है, ठीक है। तीनों लाइन यदि एक ही लाइन पर जो है मीन मोड मीडियन है तो वो जो है सिमेट्रिकल कर्व हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो है जैसे आपका ये मीन है ना, यदि पूरा जो है झुकाव है ना इधर हो, आपका राइट साइड में हो, लेकिन इसकी जो पूंछ हो ना, जो टेल हो, वो लेफ्ट की साइड में हो, तो ये कहलाता है निगेटिव स्क्यूड, है ना। इसकी जो टेल जो है ना, लेफ्ट साइड में हो, और इसका जो मेजॉरिटी ऑफ दी कर्व जो है मीन से राइट साइड में हो, है ना, इधर, तो ये कहलाता है निगेटिव स्क्यूड, ठीक है। इसी प्रकार से जो जो मीन के लेफ्ट साइड में आपका मेजॉरिटी ऑफ कर्व हो, है ना, और लेकिन इसका जो टेल हो वो राइट साइड में हो, तो ये कहलाता है पॉजिटिव स्क्यूड, मतलब एसिमेट्रिक, है ना। देखो ये एसिमेट्री है, ये पॉजिटिव एसिमेट्री है, ये दिस इज द निगेटिव एसिमेट्री है, ठीक है। तो इस तरह से आपका, और इसको इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्यूनेस को बीटा वन से, और इसका फार्मूला होता है म्यू टू स्क्वायर, है ना, म्यू थ्री स्क्वायर अपान म्यू टू क्यूब, यानी कि जो ये थर्ड सेंटर मोमेंट का स्क्वायर कर दो और सेकेंड मोमेंट से का क्यूब कर दो, तो यही इसका रेशियो जो है आपको ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहलाता है, ठीक है। तो अब आपने देखो ना ये जो दिस इज ये थर्ड सेंटर मोमेंट, है, दिस इज सेकेंड, तो अब इसको जो है इसका क्यूब करके, इसका क्यूब करके स्क्वायर वेरिएंस का, ठीक है, यानी कि म्यू टू का क्यूब करके और इसका जो है स्क्वायर से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको ये मिलेगा क्यू माइनस पी स्क्वायर अपान एन पी क्यू, ठीक है। गामा वन क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर रूट क्या कहलाता है, गामा वन कहलाता है, इसका जो है सभी का स्क्वायर रूट कर दो, है ना, तो ये गामा वन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, गामा वन इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा वन इज इक्वल टू बी क्यू माइनस पी अपान अंडर रूट एन पी क्यू, ठीक है। द वैल्यू ऑफ बीटा वन इंडिकेट्स दैट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए पॉजिटिव स्क्यूड इफ P is less than 1/2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है 1/2 से कम हो, है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज लेस देन 1/2, then
बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी पॉजिटिव स्क्यूड, है ना। और यदि सिमेट्री हो तो क्या होगा, P इज इक्वल टू 1/2, यदि ऐसा हो तो वो सिमेट्रिक होगा, है ना? तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की प्रॉपर्टी है। दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस, जिसे आपने पहले देखा कि जो जो इसका जो है ना ये मतलब ये कुर्टोसिस मतलब क्या है, जो इसका जो ना ये आपका जो ये इसका जो ये शेप है ना, शेप ऑफ वर्टिक्स, है ना। वर्टिक्स इसका जो शीर्ष है ना, ये इसका शेप कैसा है वो कहलाता है कुर्टोसिस, मतलब कुर्टोसिस, है ना। इसको बोल रहा है जैसे कुबड़ होता है ना, आपने देखा होगा, जैसे ऊंट होता है ना, ऊंट एनिमल, उसका कुबड़ निकलता है ना, तो उसका जो शेप कैसा है वो डिफाइन करता है कुर्टोसिस, है ना। इसमें भी कई तरह के हैं, यदि ये कर्व जो है ये इस तरह से होगा, है ना, ये बिल्कुल नैरो से होगा, है ना। इसका जो है ये आपका जो ये शीर्ष है इसका बिल्कुल नैरो होगा, है ना, ये नैरो होगा और ये स्मॉल होगा, तो ये कहलाएगा प्लेटो प्रोटेक्ट, ठीक है। और यदि बहुत ज्यादा ये फ्लैट होगा, इसका कर्व जो फ्लैट होगा तो ये कहलाएगा प्लेटो कट्रिक एंड ये देखो इसमें भी है, यहाँ पर देखो, यदि इसका बिल्कुल नैरो होगा तो ये कहलाएगा लेप्टोकट्रिक, ठीक है, नैरो होगा। यदि बहुत ज्यादा फ्लैट होगा, है ना, ये बहुत ज्यादा फ्लैट है ये इस वाले केस में, तो ये कहलाएगा प्लेटोकोट्रिक। और इन दोनों के बीच में होगा यानी कि नॉर्मल, है ना, तो ये कहलाता है मीसोकोट्रिक यानी कि नॉर्मल कर्व, है ना। तो दिस इज द शेप ऑफ, है ना, जो कुर्टोसिस मींस शेप ऑफ वर्टेक्स, जो इसका तो शीर्ष का, है ना, जो ये शीर्ष है इसका शेप कैसा है ये कहलाता है कुर्टोसिस, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस इज गिवन बाय बीटा 2 और इसकी डिफिनेशन है μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, है ना, यानी कि जो आपका जो है ना ये फोर्थ सेंटर मोमेंट्स से आप डिवाइड कर दो सेकंड सेंटर मोमेंट के स्क्वायर से, तो आपको मिलता है बीटा 2, तो वो वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 - 6 PQ अपॉन NPQ, ठीक है। और आपका गामा 2 होता है बीटा 2 - 3, अब ये वैल्यू हो जाएगी यानी 1 - 6 PQ अपॉन NPQ, ठीक है। तो इसका मीनिंग्स क्या है, द वैल्यू ऑफ बीटा 2 रिवील्स दैट द नंबर ऑफ ट्रायल्स टेंड्स टू इंफिनिटी, द डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू मीसोकोट्रिक, यानी कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है इंफिनिटी हो जाए तो उस केस में जो है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा मीसोकोट्रिक मींस नॉर्मल हो जाएगा, मतलब मीसोकोट्रिक मींस नॉर्मल।